कैमरा का लुक कहाँ पे डार्कनेस नहीं आ जाए ना, इधर डार्क तेरा नहीं आएगा, मेरा आएगा। डार्क आएगा तो तुम इधर आ जाना, मैं इस साइड हो जाऊंगा। हाँ, क्योंकि बेटर है जहाँ पे अच्छे अच्छे लोग, मेरे को नहीं पता कि Hello, Veena ma'am. यस सर। Yes, sir. You joined already, right? हेलो सर। Yes. Hello, ma'am. कैमरा मोड कहाँ है ऑन? कैमरा यहाँ है या So we'll हेलो सर। wait. Yeah, we will wait for 2 more minutes and then we'll start. ओके डन। Yes, students, you can do one thing. You can text more students to come and join this video conference. Hello, good afternoon, everyone. So shall we start? Yes, Veena ma'am, you can come online now. यस सर, विजिबिलिटी। Yes, yes. And all the students, a very good afternoon. And we are about to start our session. Yes. Yes. Before starting a session, why we come and gather here, that is important. And the main agenda of coming to this conference is to learn about the innovation, right? And for that, we have came across like two renowned people and experts who can deliver an amazing lecture today so that you all will learn something new. Okay. Yeah. Let me introduce to uh, Veena Somani, ma'am. She's a passionate art educator. She specialized in mixed media, paper craft, and folk arts. With expertise in fairy hobby ideas, she inspires creativity in students of all ages. And she is a proud founder of Be Creative with Veena, where art meets imagination. As a homepreneur, I take orders for home handmade items, sharing my love for craftsmanship with the community. Yeah. So she's also an active member of Mahesh Mahila Sangathan and JCI Raipur Vama Capital. So here we are with Veena Somani ma'am, who is going to give an amazing presentation today so that we all learn something new today. Yes, over to you, Veena ma'am. Hello, good afternoon, everyone. Is I'm audible? Yes, ma'am. ओके। इट्स बेटर अगर सारे लोग अपना वीडियो मोड ऑन कर ले तो हम एक्सप्रेशन के साथ में, इंटरेक्शन के साथ में एक्टिविटीज स्टार्ट करेंगे। And I think so everyone know about the topic what we are the purpose we stay online.
Yes, thank you. Hello, ma'am. Okay, Good afternoon, ma'am. good afternoon. So everyone know what is the topic of our webinar? Yes, ma'am. Can anyone tell? Yes, students, you can also do one thing. You can turn on your cameras. We need the maximum participation, all right? Yes, madam, please continue. Uh, I think so. Everyone know that we are in a good topic, sales and marketing for entrepreneurs. Okay, and this is a very niche topic for entire वर्सेट लाइक कहीं पे भी जाएं हम कोई भी टॉपिक इन कोई भी इंडस्ट्रीज या कोई भी वे में जाएं ये सब जगह हमें जरूरत पड़ेगी. अच्छा, नाउ आई एम स्टार्ट टू स्क्रीन शेयरिंग फ्रॉम अदर मोड. आपको मेरा स्क्रीन विजिबल हो रहा है? Yes, ma'am. Yes, ओके. ma'am. तो जैसा कि हमारे हिंदी में बहुत बड़ी कहावत है, जो दिखता है वो बिकता है. सुना है किसी ने? इसमें दोनों हमारे Yes, जो ma'am. टॉपिक आ रहे हैं दोनों कवर हो रहे हैं. दिखता है मतलब मार्केटिंग, बिकता है मतलब सेल्स. इज इट ओके? तो क्या मुझे कोई बताना चाहेगा सेल्स क्या है? व्हाट इज सेल्स? The amount of goods that is purchased by a customer. Okay, anyone more? Someone try to explain. आप अगर चाहे तो रेज कर या चैट बॉक्स में भी आप चैट में भी कुछ लिख सकते हैं, कुछ पॉइंट्स की मार्केटिंग से हमको क्या समझ में आता है या सेल्स से हमें क्या समझ में आता है. ओके, लेट्स आई एक्सप्लेन इन सिंपल लैंग्वेज. सेल्स वही होता है जहां पर पे इन टर्म्स ऑफ मनी एक्सचेंज होता है. एक्चुअल में दैट इज कॉल्ड सेल्स. लाइक whenever we थिंग्स प्रोडक्ट्स को हम कुछ बेचेंगे या कुछ हम खरीदेंगे तो हमारे लिए जो टर्म्स में जो चेंजेस आएंगे वो सेल्स में ही आएगा. ठीक है. और सेल्स बिजनेस का मोटिव होता है कि हाँ कोई भी बिजनेस होता है दे वांट सेल्स इन अ वेरी बिग वॉल्यूम. ओके, एंड आई गो फॉर नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड. यस, व्हाट इज सेल्स ऑफरिंग? सेल्स में क्या होता है आप बता सकते हैं? जैसा कि विजिबल हो रहा है स्क्रीन में, इस टॉपिक के अलावा आप कोई पॉइंट्स आप नोट करके बता सकते हैं? लाइक सेल्स में क्या क्या आता है? इज एनीवन ट्राई टू एक्सप्लेन? जैसे सेल्स का मेन टॉपिक होता है प्राइस, कॉस्टिंग. हम कॉस्टिंग के आधार पे ही कोई चीज परचेज करते हैं. फिर हम चाहते हैं कि हमें नेगोशिएट भी हम करते हैं. क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि उसका जो टैग वैल्यू है या एमआरपी है उससे हम कम लेना चाहते हैं. एंड व्हेन कभी हम ऑफर्स मिलते हैं या डिस्काउंट्स मिलते हैं तो वी कैन परचेज द थिंग वेरी इजीली. और कई बार जैसे मेंबरशिप्स एंड सब्सक्रिप्शंस की वजह से भी सेल्स होता है. दिस इज अ सेल्स का ये ऑफर करने का वे है एक्चुअली. नेक्स्ट. अब हम आते हैं मार्केटिंग. इज एनीवन एक्सप्लेन व्हाट इज मार्केटिंग? Please try interact and open your video mode. That will be, I feel comfortable. Payal, you can try. Just a minute, ma'am. Huh? Just a minute. Yeah. मैम मार्केटिंग वो वे है
जिसके थ्रू हम लोग अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं, लाइक नॉट फॉर एनी सेल्स, लाइक द पर्पस बिहाइंड इज टू मेक मोर सेल्स, but before that the like ads run in a TV and billboards, they do the marketing for a product or service. Superb, superb. Well said. She explained very well. Thank you, ma'am. Actual में marketing is the primary part for sales. कभी भी sales बाद में होगा जब हमारा marketing होगा. Either marketing में niche requirements आती है या फिर attractions of कोई launch होता है कोई product का, उसकी वजह से हम sales में जाते हैं, या फिर हमें सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है, अकॉर्डिंग टू दैट होता है. One more thing, I explain 5 P's for marketing: place, people, process, and price and product. Okay, 5 P is a for marketing is a every way you can use. What I say: place, people, process, product, and price. Is it okay? Say some thumbs up और कुछ ऐसा. मुझे लग रहा है कि मैं ही बोल रही हूँ या कुछ लिसनर है कि नहीं, ये पता नहीं चल रहा है. We are attending, ma'am. Yes, ma'am. Please. Yes, ma'am. नेक्स्ट. जैसा आपने बताया अभी, मार्केटिंग टूल्स में क्रिएटिंग लीड्स, मार्केटिंग का मेन ऑब्जेक्ट होता है अवेयरनेस देना, क्रिएटिंग लीड्स करना. प्रमोशंस हम करते हैं मार्केटिंग के थ्रू. वेरिएशन वे होते हैं प्रमोशंस के, एंड लॉन्चिंग होता है. जैसे कि कोई भी एक नया प्रोडक्ट, या अगर जैसे कोई मार्केट में हम फॉर एग्जांपल मैं एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हूँ लाइक अ सॉस, तो मैं सॉस को लॉन्च कर रही हूँ, इसकी वैरायटी बता रही हूँ, उसकी एडवांटेज बता रही हूँ, उसकी यूएसपी बता रही हूँ. दैट इज द वे ऑफ बेसिक मार्केटिंग टूल्स. ओके, नेक्स्ट. अब मार्केटिंग में भी 2 वे होते हैं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग इज वेरी nowadays need actually, because अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग का एक एक्सपेंसिव मोड भी बहुत ज्यादा है. फॉर एग्जांपल, एनीवन टेल मी समथिंग अबाउट ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो आप जानते हैं. व्हाट इज ट्रेडिशनल मार्केटिंग? आज से 20 साल पहले कैसे मार्केटिंग होती थी? मार्केटिंग तो पहले भी होती थी, आज भी हो रही है. क्या डिफरेंसेस है? यस अंजलि, डू यू लाइक टू से समथिंग? Anyone can try something about. लेट मी, जो मेरा स्लाइड्स में है उसमें एक पॉइंट थोड़ा शायद न्यूज़पेपर इन्फ्लुएंस, रेडियो, मूवीज हॉल एंड लोकल इवेंट्स के थ्रू हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग अब तक करते आए हैं. एग्जीबिशंस होते हैं जैसे फॉर द गारमेंट्स एंड ग्रोसरीज एंड रियल स्टेट्स, इवन नाउअडेज एजुकेशनल लेवल्स के भी एग्जीबिशंस होते हैं. और स्पॉन्सरशिप्स के थ्रू भी मार्केटिंग होती है. जैसे क्या होता है स्पॉन्सरशिप्स में के थ्रू मार्केटिंग, लाइक मैं कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हूँ, पर जब तक मैं स्पॉन्सर करूंगी तो लोगों को टेस्ट करेंगे, दे कैन यूज, देन दे आर विलिंग टू परचेज. दिस इज द सेकेंडरी पार्ट. सीजनल मार्केटिंग फॉर एग्जांपल, व्हेन क्रिसमस डेज आर coming, before that we are sharing the Christmas trees and Santas and like that. आपको मार्केट में रेड कलर्स के वाइब्स मिलते हैं. दैट्स और ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग भी मार्केटिंग होती है. दैट इज ऑल आर ट्रेडिशनल मार्केटिंग. नेक्स्ट, डिजिटल मार्केटिंग के वेज इसमें है. अगेन आई आस्क, एनीवन ट्राई?
now it is very much high level requirement of digital marketing. Digital marketing ऐसा marketing है कि हम ग्लोबल अपने वर्क को, अपनी बिजनेस को पहुंचाते हैं डिजिटल मार्केटिंग से, एंड विद अ वेरी लो कॉस्ट। हम लो इन्वेस्टमेंट के थ्रू हम डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हम अवेयरनेस कर सकते हैं, राइट? तो उसके हमारे क्या क्या टूल्स हैं, और इसका बेसिक पॉइंट, अगर आप कुछ सब्सक्रिप्शंस लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज भी इट्स अ फ्री टूल्स। जैसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग एवरीथिंग इज पेइंग, ओके, सारे के सारे जो है वो पेड मोड है, बट डिजिटल मार्केटिंग अ काइंड ऑफ आपका जस्ट इंटरनेट यूज हो रहा है, उतना ही आप पे करके भी आप काफी चीज कर सकते हो। जैसे कि आप जानते हो नाउ इट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग इज अ वेरी हाई। आज हर कोई फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, लिंक्डइन से जुड़ा हुआ है। उसके थ्रू हम काफी कनेक्शंस बनाते हैं, काफी हम मार्केट जनरेट करते हैं, काफी हम अवेयरनेस देते हैं। नेक्स्ट है व्हाट्सएप बिजनेस। अभी क्या हो रहा है कि हमारे को व्हाट्सएप के जो मेरे नंबर सेव है या मेरे नंबर्स के थ्रू कैटलॉग्स, व्हाट्सएप बिजनेस आप डाउनलोड कर लेंगे, उसके थ्रू काफी आप अपने ऑल टाइम 24 आवर्स आपका विजिबिलिटी रहेगा कि व्हाट यू लॉन्च, व्हाट प्रोडक्ट्स यू हैव, राइट? और एसईओ जो है या फिर जो पे पर क्लिक के एडवर्टाइजमेंटिंग है, वो थोड़ा हायर लेवल है, दैट इज अ काइंड ऑफ पेइंग मोड थिंग्स। और गूगल बिजनेस, जैसे अगर आप अपने बिजनेस में गूगल बिजनेस जो मैप होता है उसके थ्रू आप अगर अपना क्रिएट कर लेते हैं बिजनेस को, गूगल मैप में बिजनेस गूगल मैप का वाला डाउनलोड करके आप अपना नाम कर, तो एनी वन सर्च अराउंड योर लोकेशन इजीली पिन योर business also, and they click, they can visit your page, that will be benefits for you. And feedback and reviews are very very much uh, अभी बहुत अट्रैक्ट कर देता है कि हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अब मैं, मेरे को आज सनस्क्रीन क्रीम लेना है, तो मैं रिव्यूज देखती हूँ, कोई नया प्रोडक्ट लेने की इच्छा हो रही है, पहले हम अपनी रिक्वायरमेंट देखते हैं, फिर प्राइस देखते हैं, उसके बाद में हम फीडबैक रिव्यूज भी देखते हैं कि अगर सेम प्राइस के कोई दो चीज मिल रहे हैं हमें, तो हम चाहेंगे कि उसके रिव्यूज क्या हैं उस लेवल में। अगर आज के डेट में मूवीज भी देखने जाते हैं तो हम लोग फीडबैक लेते हैं, रिव्यूज लेते हैं, तो ये डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हमें इजीली मिल जाते हैं। उससे हम आगे अपना मार्केट जनरेट करते हैं, सेल्स बढ़ती है हमारी उसके थ्रू। नेक्स्ट, नाउ द थिंग्स बिफोर, हमने ये डिस्कस भी किया ये पॉइंट्स, जैसे कि आपको सेल्स करने से पहले ये सारे पॉइंट्स वैसे ब्रीफ में रीना मैम एक्सप्लेन करेंगी। अंडरस्टैंड क्वालिटीज, प्राइसिंग। अब हम ऐसा है कि जैसे मैंने बोला था 5 P's ऑफ अबाउट मार्केटिंग, तो उसमें क्या होता है कि हमारे को प्लेस के अकॉर्डिंग, अगर मैं अभी कोल्ड एरिया में हूँ तो मैं कॉटन क्लॉथ अगर बेचूंगी तो वहां पे नहीं चलेगा, तो दैट इज प्लेस। प्राइसिंग, अगर मैं स्लम एरिया में हूँ, मैं अगर ब्रांडेड, अगर जैसे समझ लीजिए मनीष मल्होत्रा का मैं अगर कोई हार्ट मार्केट में बेचना चाहूंगी तो नहीं बिकेगा। तो हमें अकॉर्डिंग टू दैट द प्लेस एंड वेन्यू, सब चीज को बेनिफिट, आज हम केवल मार्केटिंग करें केवल अपनी बेनिफिट्स के लिए नहीं कर सकते, हमें कस्टमर की बेनिफिट्स को समझना होगा, सोसाइटी, एंड नाउ इट इज पीपल आर अवेयर अबाउट सस्टेनेबल थिंग्स। तो प्रोडक्ट्स, ऑफर्स, नीड्स, रिक्वायरमेंट एंड अपग्रेडेशन वर्जन। अब आज की डेट में मैं जो मैं मोबाइल है, मुझे अपग्रेड एडवांस वर्जन रेगुलर चाहिए रहता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। अच्छा, पेन पॉइंट्स भी बहुत हाई हमें समझना होगा कस्टमर के। क्या होता है, कई बार हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल कि मैंने अभी एक एक्सेसरीज क्रिएट बनाया विद द क्विलिंग, ओके, बट अगर मेरे को रेनी सीजन में यूज करना है तो वो क्विलिंग वाला एक्सेसरीज नहीं वर्क करेगा। अंडरस्टूड दिस थिंग्स? नेक्स्ट, अब मैं एग्जीक्यूशन पॉइंट्स में आ रही हूँ। डेवलप सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान्स, एंड जो हम करते हैं
एग्जीक्यूशंस के लिए हमें क्या क्या चीज को ध्यान देना है, इसकी एक्सप्लेनेशन मैम करेंगी। हमें डिजिटल मार्केटिंग चैनल से कोलैबोरेशन इज आल्सो वन गुड पार्ट फॉर द मार्केटिंग, ओके। एंड आइडेंटिफाइड हम जो लीड्स होते हैं, लीड्स आ रहे हैं कोई भी वे से, तो हमें उनको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये हमारे कस्टमर बनने लायक है या नहीं। कई बार होता है कि लोग क्वेरीज करते हैं, इंटरेस्ट शो करते हैं, बट हमें ये अपने आप को बैलेंस करना होगा कि हम उनको कितना टाइम दें, और हमें और जो टाइम दे रहे हैं, वी हैव टू बी जनरेट आवर लीड, ओके। नेक्स्ट, थैंक यू। अ लिटिल पार्ट, एक मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगी। क्या कोई मुझे ये इंटरेक्शन एक्टिविटीज होगी? थैंक यू एवरीवन। अभी ये स्लाइड वाला मोड फिनिश हो गया है। अब आप लोगों को 1 to 1 थोड़ा कुछ पूछना होगा, मेरे को बताना होगा। क्या मुझे कोई एग्जाम्पल देगा? वेरी कॉमन एंड वेरी अवेयरफुल द टॉपिक अबाउट सेल्स एंड मार्केटिंग का। कोई मुझे एग्जाम्पल देना चाहेगा कि जिसने मार्केटिंग करी है उसके बाद उनका सेल्स हुआ है? प्लीज एवरीवन ट्राई, क्योंकि जब हम बोलते हैं ना तो हमारा विजन क्लियर होता है, भले ही सही है या गलत है वो बाद में पता चलता है। मैम कुड यू क्लैरिफाई द क्वेश्चन? थोड़ा कंफ्यूजन है क्वेश्चन में। मैं पूछ रही हूँ कि एक ऐसा कोई केस स्टडी बता सकते हैं या कोई टॉपिक, फॉर एग्जांपल मैं अभी एक एग्जांपल दे रही हूँ, बट आप ट्राई करो कि कहाँ पे। अच्छा, जियो का सेल्स एंड मार्केटिंग के बारे में कोई बता सकेगा? डिफरेंसेस, मतलब एग्जांपल मैं बता, लेट मी एक्सप्लेन व्हाट आई वांट टू आस्क। जियो जब लॉन्च हुआ था तो जियो ने 1 रुपया भी सेल नहीं किया था। जियो का जो सिम लॉन्च हुआ था, दे आर जस्ट वांट आधार कार्ड एंड दे आर गिवन totally free of cost SIM, and the services of internet unlimited services मिल रहा था, unlimited calls मिल रहा था। and same उस टाइमिंग में एयरटेल, BSNL, आइडिया एंड वोडाफोन, they are taking charges, okay। जियो ने मार्केट में पहले अपना दबदबा जमाया, मार्केटिंग किया, उसने लॉन्च किया विदाउट पेइंग एनी single penny money, okay। they are interact with the उन्होंने एक आईडी प्रूफ लिया जस्ट, और उसके बाद में अब विदाउट वी आर पेइंग सब्सक्रिप्शंस या फिर हमें पोस्ट पेड या प्रीपेड, हमें कुछ एक सम ऑफ अमाउंट जो फिक्स है सारे ही उसके नेट इंटरनेट से व्हाट एवर, तो उसके हम पे करते हैं, उसके बाद हमें मिलता है, राइट। तो ऐसा कोई एग्जांपल आपकी नजर में आ रहा है कि जिसने मार्केटिंग भी करी है, सेल्स भी किया है, तो कोई ऐसा टॉपिक आपके नोन में है तो आप शेयर करें। एनीवन टेल समथिंग? शुड आई हैंड ओवर टू मैम ओरियो बिस्किट्स, ओरियो बिस्किट्स के मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी थी। उससे पहले एक और बिस्किट था सेम चीज के साथ, उसका नाम शायद हाइड्रोक्सी नाम था, बट उसका मार्केटिंग अच्छा नहीं हुआ था, इसीलिए वो फेमस नहीं हो पाया था। वेरी गुड, big applause for Payal, you are attempt and Yes, very good, Payal. notice a very small thing, okay, and Oreo is not a very big product, but she's a notice very pinpoint, okay, good job, Payal. Anyone more? Try one more. Amana, would you like to try? when video mode is on ना, तो हमें कंफर्टेबल लग रहा है कि 1 to 1 हम बात कर रहे हैं, अदरवाइज लग रहा है कि now should Gurpreet sir, can I Yes ma'am.
Yes, tell me. I have no idea, ma'am. It's When okay. will this- It's okay. Try whatever you have in mind. Okay, ma'am. Gurpreet sir, should I hand over to Reena ma'am? Gurpreet sir, are you there? Yes, madam. Just wait a minute. Yes, Yeah. yes, speak, ma'am. Sir, can I hand actually interaction section में participants की requirement लग रही है, तो Yes, should yes. I hand over to Reena ma'am? हम लोग साथ में ही हैं अभी. Yeah, sure. It's not a problem, but I have to introduce her, right? Yes, yes. Now you can. Now you Is the can. session is over so that I can actually, talk about like what you have stated. I wanted to give a review of the things that the input and output that you're going to get. Sure, sir. Yeah, yeah. So I think called off then. Yeah, thank you so much, ma'am, for your session. We've learned a lot, and we also talked about the sales and marketings and the qualities and the pricing things that you have already told us prior, and also like. The you had also talked about the execution activity, like why it is really important for the development of a sale and a marketing strategies that you had mentioned. Things that are really informative. Thank you so much for that, madam. And yeah, I think the students also learned a lot today. Yeah, thank you so much. Yes, my pleasure, sir. Now, welcome to Reena ma'am. Yes. A very good evening to all. Good evening, ma'am. Good evening. Yes. Very good evening, ma'am. Very good Yeah, let me evening. introduce to you first of all to the students. Okay. Yeah. Now we have Reena ma'am here, and she's also a co-founder and a director of Robonite Robotics and STEM Education Private Limited. She is a dynamic entrepreneur, trainer, and co-founder of Robonite, an initiative dedicated to teaching robotics, coding, and AI to children. With a passion for education and innovation, she empowers students to become problem solvers and future leaders. A confident speaker and trainer, she has conducted impactful sessions on communication, creativity, public speaking, sales, and personal growth. As an active member of GCI, WAMA, and JCOM, she contributes to community development. Additionally, she has edited numerous books and research journals showcasing her expertise in academic and professional writing. Over to you, ma'am. Thank you so much, Gurpreet ji, for such a wonderful intro. And now we'll come to sales and marketing part. So I think Beena ma'am has explained, बहुत ही अच्छे से उन्होंने explain किया है कि sales क्या है, marketing क्या है, and what is the difference between sales and marketing. And I think पायल जी ने काफी अच्छे से इसको समझा भी है, and she उन्होंने interact भी किया है मैम के साथ. Right, Payal ji? Yes, ma'am. And Thank you, ma'am. तो अगर बाकी सारे लोग भी अगर अपना वीडियो मोड ऑन करेंगे तो हमें एक काफी अच्छा इंटरेक्शन सेशन हम कर पाएंगे. बिकॉज क्या होता है, हम एक या दो के साथ बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरा सेशन उन्हीं के तरफ हो गया है, राइट? उन्हीं से तो हम मेरा मानना है कि अगर हम सारे ऑन रहेंगे, वीडियो ऑन करके रखेंगे, तो हम सारे इंटरेक्ट करके इस सेशन का काफी अच्छा बेनिफिट उठा पाएंगे, राइट? सो आप में से जो भी ऑन रख सकते हैं, प्लीज आप ऑन रखिए वीडियो, तो एक अच्छा इंटरेक्टिव सेशन रहेगा. ओके, नाउ आपने सेल्स एंड मार्केटिंग के बारे में समझा. नाउ व्हाट इज स्ट्रैटेजी? कौन मुझे बताएगा कि स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है? एनीवन? ओके, स्ट्रैटेजी क्या होती है? स्ट्रैटेजी होती है, एक प्लानिंग होती है. सपोज हम अपना अगर बिजनेस लॉन्च करने वाले हैं, तो अगर हम उसकी एक स्ट्रैटेजी प्लान नहीं करेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा कि हमें किस रास्ते पे जाना है.
सो दिस इज द वे, दिस इज द प्रोसेस वेयर जहां हमें अपना प्रोडक्ट या अपनी कंपनी को लेके जाना है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटेजी। समझ में आया स्ट्रैटेजी क्या है? मुझे आप में से कोई स्टार्टअप है या कोई एंटरप्रेन्योर है, तो आप मुझे कोई बताएगा अपने बिजनेस के बारे में, और या फिर कोई कोई प्लान कर रहा है कोई स्टार्टअप करने का या बिजनेस में आने का, कोई अगर आप में से कोई प्लान कर रहा है तो आप मुझे एक ब्रीफ दे पाएंगे अपने बारे में? इट्स ओके, चलो नेक्स्ट विल गो टू नेक्स्ट स्लाइड। हमने ये समझ लिया कि स्ट्रैटेजी क्या होती है। स्ट्रैटेजी एक प्रोसेस होता है, एक प्लानिंग होती है, जिस प्लानिंग से हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, करेक्ट? अब अगर हमने प्लानिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा प्लानिंग में? व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमें कस्टमर को समझना पड़ेगा कि हम जो प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट के लिए हम प्लान कर रहे हैं या हम जिस बिजनेस के लिए प्लान कर रहे हैं, उस बिजनेस के लिए कस्टमर कौन है हमारे, हु इज द टारगेट ऑडियंस, हु इज आवर टैम। टैम मतलब आप समझ रहे हो, व्हाट इज टैम? कोई ट्राई कर सकता है टैम का फुल फॉर्म, कोई मुझे बता सकता है? टोटल एड्रेसेबल मार्केट, टैम इज टोटल एड्रेसेबल मार्केट। तो जब हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं या कोई प्रोडक्ट हम मार्केट में ला रहे हैं, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा टैम क्या है, हमारी टारगेट ऑडियंस कौन है, करेक्ट? तो आप जब जानेंगे कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, तब आप आगे बढ़ पाएंगे, उस प्रोडक्ट को आप उस मार्केट में प्लेस कर पाएंगे। समझ में आ रहे हैं? हमें टैम, जब हम टैम को समझते हैं तो हमें क्या समझने की जरूरत है? डेमोग्राफिक हमको समझने की जरूरत है कि हम किस एज ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं, हम किस लोकेशन को टारगेट कर रहे हैं, हम किस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व कर रहे हैं। अगर हमारा एक प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं मार्केट में, तो वो कौन से प्रॉब्लम है जिसको वो सॉल्व कर रहा है। अब सपोज अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ रोबोनाइट का ही, मेरी कंपनी का अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ, तो हम कौन सा ऐसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जिसको हम सॉल्व करने के लिए अपना प्रोडक्ट मार्केट में लाए हैं, क्या है? हमें समझ में आया कि रोबोटिक्स जो बच्चों के लिए एजुकेशनल रोबोटिक्स है, क्योंकि फ्यूचर इज एआई, यू ऑल नो कि फ्यूचर एआई है। अगर फ्यूचर एआई है तो बच्चे कैसे फ्यूचर के लिए रेडी होंगे? बच्चे कैसे रेडी होंगे फ्यूचर के लिए? जब हम उनको समझाएंगे, जब हम उनको पढ़ाएंगे, जब उनको हम ये स्किल में डेवलप करेंगे, तब वो समझेंगे कि एआई के लिए वो रेडी है। तो हमने इस जो मार्केट में ये जो गैप है, इस गैप को हमने समझा एंड हमने एक एजुकेशनल रोबोटिक्स एंड कोडिंग की का एक ब्रांड बनाया कि हम इसको मार्केट में प्लेस करेंगे। हमारा टारगेट ऑडियंस जो है वो कौन है? चिल्ड्रन है। 4 साल से 22 साल के जो बच्चे हैं, दैट इज माय टारगेट ऑडियंस। तो लेकिन 4 साल से 22 जो ईयर के बच्चे हैं, वो डायरेक्टली 4 साल का बच्चा डायरेक्टली तो नहीं समझेगा कि मेरे लिए रोबोटिक्स इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो टारगेट सेगमेंट है वो कौन है? हमारा टारगेट सेगमेंट है 30 इयर्स की जो लेडीज हैं या 30 इयर्स के जो मेल हैं, फादर है, सॉरी 30 इयर्स से 50 साल हम ले लेते हैं, 30 साल से 50 साल की जो ऑडियंस है, मतलब जो टारगेट ऑडियंस हमारी कौन है? 30 से 50 इयर्स के पीपल, ठीक है? तो हमको पता है कि ये जो रेंज है, इसी रेंज में ही मेरा मार्केट है। तो मैं क्या करूंगी, जब मुझे समझ आ गया कि मेरा कस्टमर कौन है, नाउ आई विल गो
फॉरवर्ड। और प्रॉब्लम्स क्या है, इन जो पेरेंट्स की प्रॉब्लम क्या है, इनके बच्चे, उनको लगता है कि बच्चे अपना जो समय है वो सिर्फ कंप्यूटर पे या फोन पे गैजेट्स जो है उसके ऊपर अपना वेस्ट कर रहे हैं। तो और उनको, उनके पास काफी टाइम है, तो वो टाइम वो कहाँ यूटिलाइज करें? तो यूटिलाइज करने के लिए दे नीड सम एक्टिविटी क्लासेस। तो अगर उनको एक्टिविटी क्लासेस चाहिए तो कहीं कंस्ट्रक्टिव जो फ्यूचर रेडी कर पाए, अगर ऐसा कोई हमें मिलता है तो दैट इज वहां जो ये जो प्रॉब्लम है पेरेंट्स की, ये हम सॉल्व कर रहे हैं। सो हमने जब अपना रोबोनाइट को लॉन्च किया तो हमने ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लिया एंड वी लॉन्च्ड रोबोटिक्स एंड कोडिंग फॉर 4 years ऑनवर्ड्स स्टूडेंट्स। ठीक है, समझ में आया कि व्हाट टारगेट मार्केट कैसे अपना बनाते हैं, हाउ वी विल प्लेस आवर प्रोडक्ट बिटवीन दिस टारगेट मार्केट। ठीक है, नाउ व्हाट वी नीड, हमें अब हमने टारगेट मार्केट प्लेस तो कर लिया, नाउ हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि मार्केट रिसर्च। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मार्केट रिसर्च। तो हमें समझ में आना चाहिए हमारा कॉम्पिटिटर कौन है। मार्केट में तो हम आ गए हैं, लेकिन मार्केट में हो सकता है और भी लोग हो, इस कंपनी रोबोटिक्स और भी लोग सिखा रहे हो बच्चों को, करेक्ट? तो हमें जानना पड़ेगा कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेसेस क्या है, करेक्ट? एंड कॉम्पिटिटर अगर उनकी स्ट्रेंथ है, वीकनेस हमें समझ में आ गई जब हमने मार्केट रिसर्च किया, एनालाइज किया, हमने बहुत सारे क्वेश्चनर मार्केट में डाले, हमारे लोगों को हमने मार्केट में भेजा, हमने ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरह से मार्केट रिसर्च किया एंड देन वी गॉट टू नो कि हमारा कॉम्पिटिटर अभी फिलहाल जब हमने लॉन्च किया था तो हमारा मार्केट में कॉम्पिटिटर अभी कोई नहीं है दैट टाइम, राइट? तो हमें समझ में आ गया कि ये गैप है, दिस इज अ गैप, क्योंकि एक्टिविटी क्लासेस तो बहुत सारी चल रही थी, डांस भी चल रहा था, ड्राइंग्स भी चल रही थी, सिंगिंग की क्लासेस भी चल रही थी, लेकिन बच्चों को जो एक फ्यूचर रेडी करे, एक क्रिएटिव क्लास प्रोवाइड करे, ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं था, करेक्ट? तो ये हमने कॉम्पिटिटर एनालिसिस करने के बाद हमने गैप फाइंड आउट किया एंड देन हमने प्लेस किया अपना प्रोडक्ट को। सो तो आप भी अगर अपना कोई अगर प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं तो यू नीड टू टेक कंसिडरेशन दिस, आपकी ये प्लानिंग में रहना चाहिए कि कस्टमर आपको समझना पड़ेगा, टारगेट ऑडियंस आपको समझनी पड़ेगी एंड मार्केट में कॉम्पिटिटर को आपको समझना पड़ेगा, करेक्ट? नेक्स्ट, नाउ कम्स टू यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन। अब यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है? आपने जो आपको समझ, आप बोलना चाहेंगे पायल, यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है? Sorry, ma'am, I don't have any idea about it. It's okay, no problem. Okay, यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन होता है कि आपका एक यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन होना चाहिए आपके प्रोडक्ट का, राइट? अगर आपको अपना यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन आपको पता है तो आप अपने जो प्रोडक्ट है उसको आप कंपटीशन से डिफरेंट दिखा पाएंगे। जो मैंने आपको बताया ना, आपको गैप आइडेंटिफाई करके आप अपना प्रोडक्ट प्लेस कर दे रहे हो, तो लेकिन आप प्रोडक्ट तो प्लेस कर दे रहे हो, आज के डेट में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स आ गए हैं, तो यू नीड टू डिफाइन योर यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, करेक्ट? तो जब हमने देखा कि यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन हमारा क्या है, हम दूसरे कॉम्पिटिटर से हम कैसे अलग हैं, तो हमने फाइंड आउट किया कि हमारा जो रोबोटिक्स का प्रोग्राम है दैट इज स्ट्रक्चर्ड रोबोटिक्स प्रोग्राम फॉर 4 years ऑनवर्ड्स। 4 साल के लिए इस तरह का स्ट्रक्चर्ड, कि आप मतलब लेवल 1 में ये पढ़ाओगे, लेवल 2 में ये पढ़ाओगे, इस तरह से जो हमारा जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है प्रोग्राम का, ऐसा प्रोग्राम कोई प्रोवाइड नहीं करता है। What others are providing, they are providing project based programs, right? प्रोजेक्ट बेस्ड प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन एक बच्चे को इस लेवल से, 4 साल का बच्चा कितना छोटा होता है, यू नो, राइट? तो इस लेवल से बच्चे को धीरे धीरे रोबोटिक्स एंड कोडिंग की एजुकेशन दे करके उसको इस लेवल तक लाना, तो वो हमारा यूएसपी है। फॉर एकेडमी, हमारी एकेडमी है एंड वी आल्सो वर्क विद स्कूल्स एंड कॉलेजेस। तो हम स्कूल्स में हमारी क्या यूएसपी है?
हमारी स्कूल में यूएसपी है कि हमारा जो आप सब जानते हैं एनईपी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसके मुताबिक हमारा क्या है, एनईपी से अलाइन क्लासरूम प्रोग्राम है फॉर टू प्रोवाइड 21st सेंचुरी स्किल सेट। तो ये हमारी यूएसपी है कि हमारा एनईपी के साथ अलाइंड क्लासरूम प्रोग्राम है। तो ये आप समझ सकते हो कि आपकी यूएसपी सिर्फ एक नहीं हो सकती। आपके प्रोडक्ट, अगर आपका मार्केट टारगेट मार्केट 2 है, मेरा टारगेट, अगर मेरी कंपनी का देखा जाए तो टारगेट मार्केट ऑडियंस मतलब पेरेंट्स भी है प्लस स्कूल भी है, राइट। तो हमारा 2 टारगेट मार्केट है, तो दोनों टारगेट मार्केट के लिए हमारी जो यूएसपी है, जो यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन है, दैट 2 आर डिफरेंट दोनों प्लेस के लिए, करेक्ट। नाउ विल कम टू ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय ब्रांडिंग? कोई बोलेगा? एनीवन कैन आंसर? Naming a company ओके and marketing it. ओके, और कोई? चलो मैं बताती हूँ। ब्रांडिंग क्या होता है? ब्रांडिंग होती है कि आप ब्रांड, अपने जब प्रोडक्ट को ब्रांड करते हो तो आपकी प्रोडक्ट की एक आइडेंटिटी क्रिएट होती है, करेक्ट। आपका प्रोडक्ट की आइडेंटिटी क्रिएट होती है। अब जैसे मेरा रोबोनाइट है, रोबोनाइट रोबोटिक्स, बहुत लंबा नाम है, लेकिन मैं अगर उतना लंबे नाम से बोलते रहूंगी तो लोग नहीं समझेंगे। तो हमने क्या किया है, हमने एक लोगो डिजाइन किया है, करेक्ट। दिस इज आवर लोगो। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे एक रोबोनाइट का लोगो है, ठीक है। अब ये लोगो है, लेकिन ये लोगो बच्चों से कैसे एसोसिएट हो, क्योंकि हम तो 4 साल से बच्चों को पढ़ाते हैं रोबोटिक्स, तो बच्चों को कैसे ये अट्रैक्ट करे, उसके लिए हमने क्या किया है, एक हमारा मैस्कॉट है, जो आपको रॉब दिख रहा है बीच में ओ के प्लेस पे, दैट इज आवर मैस्कॉट। वो रॉब है जो समझाता है कि हाँ हम रोबोटिक्स से रिलेटेड कुछ कर रहे हैं, बट इसका मतलब है कि हम फन वे में बच्चों को पढ़ा रहे हैं रोबोटिक्स, करेक्ट। हमने देखा कि इसको अगर हम प्लेस करते हैं एज अ लोगो, तो बच्चों, मतलब पेरेंट्स भी समझ रहे हैं, बच्चे भी समझ रहे हैं, दे आर ऑल्सो, मतलब वो अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, करेक्ट, राइट। तो ऐसे ही अगर आप अपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, कोई प्रोडक्ट आप ला रहे हैं मार्केट में, तो आपको अपने प्रोडक्ट की एक आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी, एक उसका ब्रांड बनाना पड़ेगा उसको। सबसे पहले यू नीड टू बिल्ड योर ब्रांड, करेक्ट। तो ब्रांड बिल्डिंग के लिए यू नीड टू क्रिएट अ लोगो। लोगों में कलर हो, मैसेज हो, ताकि लोगों को पता चले कि ये लोगो क्या बोल रहा है, राइट। अगर लोगो कुछ बोलेगा नहीं, बोरिंग सा लोगो होगा, तो नोबडी विल ऑब्जर्व इट, करेक्ट। अगर उसमें कुछ ना कुछ मैसेज मिलना चाहिए लोगों से, करेक्ट। तो आपकी ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट होगी यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट, अब आपने लोगो तो क्रिएट कर लिया है, राइट। आपका प्रोडक्ट मार्केट, आपको टारगेट मार्केट पता चल गया है। नाउ यू आल्सो क्रिएटेड योर लोगो, मतलब आपने ब्रांड की एक आइडेंटिटी बना ली है। नाउ व्हाट, इतना से तो आपका कुछ नहीं होने वाला है। आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी मार्केट में, ओके। नाउ यू नीड टू क्रिएट अवेयरनेस इन द मार्केट। तो अब मार्केट में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, जैसे बीना मैम ने बताया कि आप मार्केटिंग कर सकते हैं। मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं? आप ट्रेडिशनल वे से भी मार्केटिंग कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के वे से भी आप, सोशल मीडिया के वे से भी आप मार्केटिंग कर सकते हैं। लेकिन डिजिटल, अगर आप ट्रेडिशनल वे में जाते हैं तो आपको क्या लगेगा, आपको बहुत टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगा, पैसे भी ज्यादा लगेंगे मार्केटिंग में। जो आज से 20 साल पहले चल रही थी मार्केटिंग, चल रही थी, अच्छी चल रही थी, बट नाउ आज के जमाने में क्या है, 20 साल बाद क्या चेंज हो गया, लोगों को कुछ भी स्लो में काम हो नहीं अच्छा लगता। एवरीवन वांट्स कि सब कुछ जल्दी जल्दी काम हो। जो प्रोसेस है दैट शुडंट बी स्लो, वो जल्दी भागे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डिजिटल मार्केटिंग यूज करनी पड़ेगी। डिजिटल मार्केटिंग अगर हम करते हैं तो उसमें हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो यूज करना ही पड़ेगा, राइट। सोशल मीडिया में अगर हम जाते हैं, तो अब जैसे आप अगर फेसबुक सेलेक्ट करते हो,
तो मेरे मेरे जो कस्टमर हैं उनके लिए फेसबुक इज गुड एनफ, क्योंकि मेरे कस्टमर की एज क्या है, 30 साल से 50 साल के बच्चे, सॉरी 30 साल से 50 साल के पेरेंट्स, करेक्ट। तो मेरा टारगेट मार्केट वो है, तो मैं फेसबुक यूज करूंगी, मैं अपना जो भी एड रन करना है, अवेयरनेस क्रिएट करनी है, वो सारे मैं फेसबुक पे कर सकती हूँ, करेक्ट। इंस्टाग्राम में यूज करूंगी फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस, बट जो मेरा एड रन ये सब होगा वो मैं फेसबुक पे करूंगी, बिकॉज मेरे जो रेंज के जो पेरेंट्स है, ऑडियंस है, दैट ऑल आर ऑन फेसबुक। अब मेरा 2 बिजनेस है, एक एकेडमी है, एक स्कूल है और कॉलेजेस है। तो मेरे स्कूल एंड कॉलेजेस के जो प्रिंसिपल्स है, ओनर्स है, दे विल नॉट बी ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ज्यादा नहीं होंगे वहां। तो कहाँ मुझे मिलेंगे? तो आई नीड टू गो फॉर लिंक्डइन। मुझे लिंक्डइन में जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रोफेशनल, अगर आपको कुछ भी प्रोफेशनल वे में काम करना है तो वहां पर आपको प्रोफेशनल्स जो मिलेंगे वो आपको लिंक्डइन में मिलेंगे, राइट। तो अगर आप अपना बिजनेस लॉन्च करते हो, अगर आप अपना बिजनेस लॉन्च करते हो, तो आपको लिंक्डइन में अपनी आईडी बनानी बहुत जरूरी है, करेक्ट। तो आज ही आप अपना लिंक्डइन में आईडी बनाएं। आपको अगर बिजनेस टू बिजनेस मार्केट करना है तो लिंक्डइन इज योर बेस्ट टूल सोशल मीडिया के लिए, करेक्ट। एंड फेसबुक फॉर टारगेट, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, दिस ऑल आर फॉर B2C, करेक्ट। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये भी एक तरीका है। आप अगर अपने गूगल एड एंड ऑल में आप अगर वर्ड्स, अगर सपोज मैं रोबोटिक्स पढ़ा रही हूँ, मैं रोबोटिक्स, कोडिंग, AI, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनको मैं अगर गूगल पे मैं अपना पेड सब्सक्रिप्शन ले लेती हूँ, वर्ड्स को एडवर्ड्स चला देती हूँ, तो क्या होगा, कोई भी सर्च करेगा रोबोटिक्स तो मेरी कंपनी का नाम पहले दिखेगा, कोई भी कोडिंग सर्च करता है तो मेरी कंपनी का नाम पहले दिखेगा, करेक्ट। तो इसी तरह से अगर आपकी कंपनी, आप चाह रहे हो कि लॉन्च करना है और हर कोई उसको पहले देखे, कंपनी आपकी, बहुत लोग सेम कंपनी में होंगे, सेम तरह का आप जो प्रोवाइड कर रहे हो सॉल्यूशन बहुत लोग प्रोवाइड कर रहे होंगे, बट आपको पहले लोग देखें, आपको पहले लोग कांटेक्ट करें, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल एडवर्ड में अपने वर्ड्स डालने होंगे, जो जनरल आप माइंडसेट से सोचोगे कि इस तरह के जो लोग हैं इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं, करेक्ट। अब जैसे रोबोटिक्स है, जरूरी नहीं है पेरेंट्स खाली रोबोटिक्स ही सर्च करें, वो ये भी सर्च कर सकते हैं कि कोई क्रिएटिव क्लासेस हैं क्या, राइट। तो कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी क्लासेस है क्या, फन एक्टिविटी क्लासेस है क्या, तो इस तरह से भी वो वर्ड सर्च कर सकते हैं। तो मुझे अपने वर्ड्स को एडवर्ड में ऐसा रखना पड़ेगा कि ये सारे वर्ड्स में डालूं, ताकि कोई भी वर्ड सर्च करे तो मेरा ही नाम पहले दिखे, करेक्ट। तो ये हो गया, इसमें आपको कंटेंट मार्केटिंग जो होती है, आपके कीवर्ड्स एंड क्रिएटिव वीडियोस बना के आप रील डाल सकते हो आपकी कंपनी का, ताकि आपकी कंपनी फेमस हो, अवेयरनेस क्रिएट हो। दिस ऑल आर द टेक्टिक्स, दिस ऑल आर फॉर मार्केटिंग पर्पसेस। पेड एडवर्टाइजिंग, लाइक जैसे मैंने कहा कि फेसबुक एंड गूगल एड्स पे आप पेड मार्केटिंग कर सकते हैं। आपको अपना एड रन करना है, आप अपना एक बजट रखिए, सपोज आपने 2000 बजट रखा है फॉर अ वीक, आप बजट रखिए और उस बजट में आप एक कैंपेन रन कर दीजिए। हो सकता है आपको उससे लीड जनरेट होगी, कुछ तो लीड जनरेट हो ही जाएगी, एटलीस्ट आपको ये समझ में आएगा कि मैंने जितना एक्सपेंस किया था उससे ज्यादा मुझे मिल गया है। सो ये जो है, ये सारे मार्केटिंग के स्ट्रैटेजीज है, आप यूज करेंगे, देन यू विल नो कि कैसे ये आगे वर्क करता है, करेक्ट। नेक्स्ट, अब आ जाती है सेल्स टेक्निक एंड स्ट्रैटेजीज क्या होती है। अब जैसे सपोज मैंने कहा कि आप गूगल पे एड रन करो, क्योंकि आपका प्रोडक्ट है तो आपको अवेयरनेस तो क्रिएट करनी पड़ेगी। आप सोचोगे कि मैंने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, मेरी ब्रांड आइडेंटिटी बन गई, मैंने ये कर लिया, मैंने ब्रांडिंग कर ली, मैंने सब कुछ कर लिया, अब मुझे क्या करने की जरूरत है? नहीं, मैंने सोशल मीडिया पे भी डाल दिया, लेकिन सोशल मीडिया पे डालने से जरूरी नहीं है ना कि आपके सारे टारगेट कस्टमर्स देख लेंगे, आपके सारे टारगेट ऑडियंस जो है दे विल सी द प्रोडक्ट, जरूरी नहीं है।
तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू यूज द सेल्स टेक्निक। आपको सेल्स टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। आप फेसबुक, अगर आपका टारगेट कस्टमर ऑडियंस अगर फेसबुक पे है, तो यू नीड टू रन द एड। आपको एड रन करना पड़ेगा। एड रन करने के लिए क्या होगा, आप सोचोगे चलो मैंने एड रन कर दिया 2000 का, अब तो मुझे लीड जनरेट हो गई। सपोज मुझे लीड जनरेट हो गई 500 लीड जनरेट हो गई, तो 500 लीड अब मेरा कस्टमर है। मतलब मुझे इनसे जैसे मैम ने आपको बताया कि सेल्स मतलब क्या होता है, पैसा होता है। अगर सेल हुई तो आपके हाथ में पैसा आएगा। आप सोचोगे मैंने एड रन कर दिया, 500 लोगों की लीड जनरेट हुई, तो 500 लोगों का आपको पैसा आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, इसका एक प्रोसेस होता है, आपको वो प्रोसेस समझना पड़ेगा। उसको हम कहते हैं सेल्स फनल। सेल्स फनल आ जाता है। आप ये देखोगे, मैंने एक ये बनाया है सेल्स फनल का, एक पिक्चर बनाई है मैंने। इस तरह का आपने देखा है कोन देखा है? तो ये जो कोन होता है, ये जो कोन है, इसमें कोन में जो सबसे पहला पार्ट है दैट इज अवेयरनेस। आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो आप देखोगे यहाँ पर स्लाइड में लिखा है अवेयरनेस, करेक्ट? सेल्स फनल एक स्ट्रेटेजी है। मतलब आप समझोगे, आप जो एड रन कर रहे हो उसका मैं आपको प्रोसेस बता रही हूँ कैसे जाता है, राइट? ये एक फनल है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहला होता है पार्ट अवेयरनेस, सेकेंड आपका आ जाता है इंटरेस्ट, थर्ड आता है डिसीजन, एंड फोर्थ आपका हो जाता है एक्शन। ठीक है, ये आपने ये देखा। अब अवेयरनेस, आपने एक एड रन किया 2000 का, करेक्ट? आपने फेसबुक पे एक एड रन किया 2000 रुपीज का फॉर अ वीक, एक हफ्ते के लिए आपने रन किया। तो आपने देखा कि 10,000 लोगों ने मेरा एड देखा है। ठीक है, आपको व्यूअर कितने थे? 10,000। तो 10,000 लोगों ने अगर वो एड देखा, तो आप सोचोगे वाओ 10,000 लोगों ने मेरा एड देखा है, तो ये 10,000 लोग मेरे कस्टमर हैं। नहीं, आपके कस्टमर नहीं है वो, बट आपने एक अवेयरनेस क्रिएट की आपके ब्रांड की, आपका लोगो, आपका ब्रांड, आपकी सर्विसेज, आपके प्रोडक्ट की डिटेल्स उन 10,000 लोगों तक पहुंची। इसका मतलब है आपके प्रोडक्ट की अवेयरनेस क्रिएट हुई 10,000 लोगों में, करेक्ट? समझ में आया ना? 10,000 लोगों में अगर अवेयरनेस क्रिएट हुई, तो अब उसमें से क्या होगा, उसमें से आपका जो इंटरेस्ट है, मतलब जिनका आपको रेस्पॉन्ड आया, आपने एड क्रिएट किया तो आपको इंटरेस्ट दिखाया 100 लोगों ने, मतलब 1% आपका इंटरेस्ट आपको दिखाया है 10,000 में से 1% जनता ने, ऑडियंस ने, राइट? तो 1% ऑडियंस ने दिखाया, दैट मीन्स 100 लोगों ने आपको मेल किया, आपको रेस्पॉन्ड दिया कि हम आपके प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं। दैट मीन्स इंटरेस्ट आपको दिखाया, करेक्ट? नेक्स्ट आ जाता है डिसीजन। डिसीजन में क्या हुआ, जब आपको इंटरेस्ट शो किया तो आपने उनको कांटेक्ट किया, आपने उन 100 लोगों को कॉल किया। तो कुछ लोग बोलेंगे यार मैंने तो ऐसे ही देखा तो मैंने इंटरेस्ट शो कर दिया, बट अभी मुझे खास इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे नहीं, अभी एग्जाम्स चल रहे हैं तो अभी मुझे इंटरेस्ट नहीं है, बाद में होगा तब मैं आपसे बात करूंगी। तो ऐसे करके जो फिल्टर होगा, काफी लोग फिल्टर हो जाएंगे, और जो 100 लोग हैं उसमें से 50 लोग बचेंगे जो बोलेंगे हाँ स्टिल मैं डिसीजन लेने का सोच रही हूँ, मैं आपके एकेडमी आने का सोच रही हूँ, करेक्ट? या आपके प्रोडक्ट में अभी भी मेरे को इंटरेस्ट है, मैं अभी भी सोच रही हूँ कि ये प्रोडक्ट मैं लूं या नहीं लूं, अभी भी मैं उस डिसीजन में हूँ, करेक्ट? उसमें से फिर क्या होगा, जब हम उनको बोलेंगे, जैसे सपोज मेरे प्रोडक्ट के लिए मैं उनको बोलूंगी कि भाई आपको फ्री डेमो है, 50 लोगों को मैं बोलूं, ये 50 जो मेरे डिसीजन में है, मैं उनको बोलूंगी आप मेरी एकेडमी आइए, आप एक अपने बच्चों को लेके आइए, आप उनको एक फ्री डेमो दीजिए, हमारे प्रोडक्ट को समझिए। तो वो समझने के लिए हो सकता है वो 50 लोग मेरे एकेडमी आ जाएं, बट जरूरी नहीं है कि वो 50 में से 50 आए, हो सकता है उसमें से 20 ही आए, 20 लोग मेरी एकेडमी आए, और उन 20 लोगों में से ये भी हो सकता है कि सिर्फ
5 ही लोग कन्वर्ट होंगे। जो मेरे 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 ऊपर डिपेंड करता है कि मैं उनको कैसे कन्विंस करती हूँ, दैट विल बी माय सेल्स स्ट्रैटेजी। कि मैं उनको, क्योंकि वो मुझे ये भी बोल सकते हैं कि मैम मुझे आपका प्रोग्राम बहुत पसंद आया, मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा ज्वाइन करे, लेकिन मैं आपकी फीस 5000 रुपीज पर मंथ है, तो मैं आपको 5000 रुपीज अभी दूंगी और मेरा बच्चा 2 दिन में तीसरे दिन नहीं आया तो? बहुत सारे पेरेंट्स बोल सकते हैं मुझे, तो मैं क्या बोलूंगी उनको कि मैं मुझे तो वो कन्वर्ट करना है ना, मुझे तो सेल करना है। तो मैं उनको बोलूंगी आप एक फ्री डेमो तो दे लीजिए, पहले आपको बच्चे का इंटरेस्ट पता चल गया कि बच्चे को इंटरेस्ट है। आप मुझे आप जो फीस देना चाहती है मुझे, आप अभी मत दीजिए आप फीस। आप बच्चे को एक दिन और भेजिए मेरे एकेडमी में, ठीक है? आप भेजिए एकेडमी में अपने बच्चे को, हम फिर देखते हैं उसको इंटरेस्ट है कि नहीं है। वो अपने बच्चे को फिर से भेजेंगे हमारे एकेडमी में। बच्चे को इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन पेरेंट्स को अभी भी लगता है कि मेरा बच्चा बहुत चंचल है, हो सकता है कि वो तीसरी क्लास ना आए, या हो सकता है कि वो चौथी या 5वीं क्लास में छोड़ दे। तो मैं क्या बोलूंगी उनको, आप एक काम करिए, हमारा एक 5 डेज का वर्कशॉप है, 5 डेज का वर्कशॉप है, आप उसमें एनरोल कर लीजिए। उसकी फीस 2200 है, आप उसमें एनरोल कर लीजिए। तो वो 5 डेज, क्योंकि उसको तकलीफ है ना, उसको समझ ही नहीं आ रहा उसका बच्चा टिकेगा नहीं टिकेगा, तो आप बच्चे को आप 5 डेज के वर्कशॉप में कर लीजिए एनरोल। तो बच्चे को 5 डेज के अगर आपका बच्चा को इंटरेस्ट आया और वो कंटिन्यू करना चाहेगा, तो हम क्या करेंगे, 5000 की जो फीस है उसमें से 2200 हम आपको उसमें से डिडक्ट कर देंगे, जो आप 5 डेज के, क्योंकि मैं उसको फ्री में कितने दिन दूंगी, 1 दिन डेमो दे सकती हूँ, 2 दिन फ्री क्लास दे सकती हूँ, लेकिन हर बार मैं उसको फ्री क्लास तो नहीं दे सकती हूँ। तो मुझे उसको अपने वर्कशॉप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले मैं वर्कशॉप दूंगी एंड देन उसको फिर मैं, हो सकता है वो 5 डेज में उसको समझ में आ गया कि नाउ माय चाइल्ड इज इंटरेस्टेड, तो वो एक मेरा लॉन्ग टर्म हो गया। अब मेरे पास क्या है, उस बच्चे के लिए 7 साल का प्रोग्राम है, तो वो 7 साल के लिए मेरा एक कस्टमर बन गया, ठीक है? तो इस तरह से हमें कन्वर्जन करना होता है। लीड जनरेशन आप समझे, जो मैंने आपको फनल दिखाया, उसमें अवेयरनेस क्रिएट किए, अवेयरनेस क्रिएट होने के बाद जो 100 जो लीड हुई, जो 100 लोगों का रेस्पॉन्स आया, दैट इज माय लीड जनरेशन, करेक्ट? एंड क्लोजिंग स्ट्रेटेजीज मैंने बताई, जैसे मैंने बच्चे को बोला और क्लोज किया, और वो मेरा नाउ ही और शी इज माय स्टूडेंट नाउ, तो वो मेरी क्लोजिंग स्ट्रेटेजी हुई, वन ऑफ द स्ट्रेटेजी हुई। ऐसी हम बहुत सारी क्लोजिंग स्ट्रेटेजीज करते हैं जिससे बच्चे हमारे स्टूडेंट बन जाएं एंड उनके पेरेंट्स हमारे कस्टमर बन जाएं, करेक्ट? नेक्स्ट, अब आ जाते हैं कस्टमर सेंट्रिक मार्केटिंग। कस्टमर सेंट्रिक मार्केटिंग क्या होती है, बताओगे पायल? कस्टमर के इंटरेस्ट को लेके लाइक मे बी मार्केटिंग जो होती है, ओके, I could gather that up from the name only. okay. I don't have the basic idea No, actually. it's okay, very good. Thank you, ma'am. बहुत अच्छा है। कस्टमर सेंट्रिक मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, अब जैसे मैंने बताया कि कस्टमर तो मेरा कन्वर्ट हो गया, राइट? कस्टमर मेरे बन गए। अब अगर कस्टमर को मैंने बना तो लिया है, लेकिन अगर मैं उसको कस्टमर मैंने बना लिया है, अगर मैं उसको जो बोलते हैं ना आफ्टर सेल्स सर्विस अगर मैं नहीं दूं, कस्टमर मेरा बन गया और मैं आफ्टर सेल सर्विस उसको नहीं दूं, उसको अट्रैक्ट करके नहीं रखूं, तो वो मेरा क्यों कस्टमर रहेगा? हो सकता है वो बीच में डिस्ट्रैक्ट हो जाए, कोई और कंपनी उसको बोले कि हम आपको उससे अच्छा कोर्स दे सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, हो सकता है मेरे कस्टमर को भटका के ले जाए। आप जैसे देखोगे, जैसे मैम ने आपको जियो का बताया कि जियो, अब आप फोन की कंपनीज में ही देखो, आपको कोई और अच्छा ऑफर दे रहा है, कोई और अच्छा आपको रेंटल ये दे रहा है, तो आप क्या करते हो, स्विच कर लेते हो, क्योंकि आपको क्या फर्क पड़ता है, कंपनी कोई भी हो,
आपको तो फोन में बात करने से मतलब है, आपको उसके डाटा प्लान से मतलब है, राइट? तो कस्टमर को जो बोलते हैं ना, हम कस्टमर को जब तक कुछ एक्स्ट्रा नहीं देंगे तब तक कस्टमर आपका बन के नहीं रहेगा, करेक्ट? तो कस्टमर को एक्स्ट्रा हमको देने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको कुछ ना कुछ सर्विसेज फ्लोट करनी पड़ेगी, राइट? जैसे लॉयल्टी प्रोग्राम्स होते हैं सॉरी, जैसे लॉयल्टी प्रोग्राम्स होते हैं, हम ये बोल सकते हैं कस्टमर्स को कि आप अगर आप अगर आप 3 महीने हमारे कंटिन्यूस अगर हमारे प्रोग्राम में एनरोल हो, तो हम आपको आपके बच्चे के लिए हम आपको 1 महीने की फीस फ्री कर सकते हैं। इस तरह के हम कुछ ना कुछ भी हम ऐसे सेल्स स्ट्रैटेजीज कुछ ना कुछ हम यूज करेंगे कस्टमर रिटेंशन के लिए। हम यूज करेंगे स्ट्रैटेजीज जिससे क्या होगा कि कस्टमर हमारा बन के रहेगा। हम उनके बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। हम बर्थडे में क्या करते हैं, जैसे हम लेगो यूज करते हैं बच्चों को रोबोटिक्स पढ़ाने के लिए, तो हम क्या करते हैं कि लेगो के बहुत सारे किट आते हैं, छोटे छोटे किट आते हैं, वो हम उनको बर्थडे में गिफ्ट देते हैं, करेक्ट? तो क्या होता है कि बच्चे को उससे बहुत बच्चा अट्रैक्टेड रहता है कि हमारा बर्थडे सेलिब्रेट होगा, हमें गिफ्ट मिलेगा। तो दिस ऑल आर द स्ट्रैटेजीज कि कस्टमर को कैसे हम रिटेन करें। कस्टमर देखो मार्केटिंग करता है तो अपने एक्सपेंसेस करता है, तो दिस ऑल आर द मार्केटिंग पार्ट। कस्टमर रिटेंशन इज ऑल्सो अ मार्केटिंग, करेक्ट? कस्टमर आपको बहुत सारे और भी ऐसी चीजें होती है जो कस्टमर रिटेंशन के लिए करनी पड़ती है, स्ट्रैटेजीज यूज करनी पड़ती है, जिससे आपका कस्टमर आपका रहे साथ में, अपने फ्रेंड्स अपने फैमिलीज में आपको रेफर करें। उसके लिए हम क्या करते हैं कि कस्टमर को ही हम अपने जैसे उनके पेरेंट्स हैं, हम उनको बोलते हैं कि हमारा अभी एक रेफरल प्रोग्राम चल रहा है, अगर आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली किसी को आप एडमिशन दिलवाते हो तो हम आपकी 1 मंथ की फी फ्री कर देंगे, डिस्काउंट कर देंगे। तो ये सब क्या है, दिस ऑल आर द स्ट्रैटेजीज व्हाट पीपल यूज फॉर देयर बिजनेस। क्यों? क्योंकि हमें तो बिजनेस को आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाने के लिए न्यू लीड अगर जनरेट करनी है तो एग्जिस्टिंग जो कस्टमर्स हैं उनको भी हमें रिटेन करना है, ठीक है? तो ये हमें बिजनेस आगे बढ़ाने में भी हेल्प करता है, साथ में हमारे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनको रिटेन करने में भी ये स्ट्रैटेजी यूज होती है, राइट? नेक्स्ट, एसी थोड़ा जोर करोगे तो now we'll go for growth hacking and low cost marketing। ये क्या होता है? अब आप सोचोगे इतना तो हमने सुन लिया मार्केटिंग एंड सेल्स के बारे में, अब ये क्या है? ये है कि आपको ग्रोथ पे तो ध्यान देना ही पड़ेगा, राइट? आपके पास ये जो मैंने आपको फनल वाला बताया, ये जो स्ट्रैटेजी है, ये ऐसा नहीं है एक बार मैंने रन किया एड और हो गया, नहीं। आपने एक बार एड रन किया, आपने 2000 खर्चा किए, आपको कन्वर्जन कितना मिला? 5 कस्टमर्स का कन्वर्जन आपको मिला। 5 कस्टमर्स हुए। 5 कस्टमर्स की अगर मेरे टर्म में फीस देखें तो क्या है, 5000 पर मंथ है, ठीक है? तो और अगर ईयरली देखें तो 60,000 ईयरली जाता है। एक लेवल की फीस 60,000 होती है। 60,000 इंटू 5 कितना हुआ? 3 लाख रुपए हुए। मैंने 2000 खर्चा किया, मेरे को 3 लाख रुपए जनरेट हुए, करेक्ट? समझ में आया? तो वैसे ही ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये जो 2000 रुपए की जो मेरा एड रन है ना, ये मुझे कंटिन्यूअस हर वीक करना पड़ेगा। If I will do it on continuous basis, तभी मुझे ये लीड जनरेट होते रहेगी। 5 हर वीक मुझे 5 लीड जनरेट होते रहेंगे सॉरी, और मेरा मतलब बिजनेस उसी साइकिल में चलता रहेगा, करेक्ट? तो हमें अगर बहुत लो कॉस्ट में जाना है तो हम क्या करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं। किसके साथ करते हैं? इन्फ्लुएंसर्स के साथ। I'm so sorry।
हम लाइक इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, कैसे क्या किस टाइप के इन्फ्लुएंसर्स होते हैं लाइक आप देखोगे कि इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे एक है मी मी एंड मॉम्स करके है, मॉमीज करके है। वो लोग क्या करते हैं, वो जितने भी बच्चों के मम्मीज है उनका एक एक उनके ग्रुप्स में जाते हैं और उनके हाथ में जो भी प्रोडक्ट्स या ब्रांड होते हैं वो वहां पर उनके बारे में अच्छा बताते हैं, उनके बारे में उनके कुछ फ्री गिफ्ट्स होते हैं वो बांटते हैं, और या फिर उनके कुछ पैम्पलेट्स होते हैं। वो मतलब वो क्या होता है कि वो आपसे आप उनके साथ जब कोलैबोरेट करोगे ना, आप बोलोगे कि आप मेरी ये ब्रांडिंग करोगे, आप मेरा अवेयरनेस क्रिएट करोगे, तो आप क्या चार्ज करोगे? तो हम इन्फ्लुएंसर को क्या करेंगे, उन्होंने कहा कि 5000 रुपीज मंथली मेरा चार्ज है, करेक्ट। अब 5000 मैं उनको मंथली दे रही हूँ, तो मुझे जानना पड़ेगा कि इनकी रीच कितनी है, ठीक है। वो जो इन्फ्लुएंसर है उसकी रीच हो सकती है 10,000 हो, 10,000 मॉमीज के पास वो जाते हो, उनकी रीच है। तो मेरा क्या हुआ, 5000 में मैं 10,000 के लोगों तक मेरी रीच जा रही है। भले ही उसमें से कन्वर्जन मुझे 10 ही लोग आए, भले ही उसमें से कन्वर्जन मुझे 5 ही बच्चों का आए, लेकिन मेरी रीच तो जा रही है। तो दिस ऑल आर द लॉ, मतलब बोलते हैं ना बहुत कम खर्चे में मार्केटिंग करना अपने ग्रोथ के लिए। ये वही है फ्री मॉडल, फ्रीमियम मॉडल। मतलब क्या है, आपके कस्टमर्स को आप अट्रैक्ट करने के लिए जो फ्री बांटते हो ना, जैसे अभी हमारा चल रहा है, एक एड रन चल रहा है हमारा कि 100% फ्री रजिस्ट्रेशन फी। हमारी जो रजिस्ट्रेशन फी है वो 1000 रुपीज है। तो जो भी पेरेंट्स अभी 28 तक हमारे यहाँ रजिस्टर करता है उसको फ्री है। तो ये दिस आर द फ्रीमियम मॉडल है ये, जो हम पेरेंट्स को ऑफर में दे रहे हैं, करेक्ट। नेक्स्ट, ये आपका, अब ये आ गया आपका, जैसे आपने बिजनेस तो चला लिया, आपने एड भी रन कर लिए, सब कुछ कर लिया। अब आपके बिजनेस को आप सक्सेस कैसे मेजर करोगे, हाउ डू यू मेजर योर सक्सेस, राइट। तो आपको क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे टूल्स यूज करने पड़ते हैं अपने सक्सेस को मॉनिटर करने के लिए। लाइक जैसे यहाँ है आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। आपने कस्टमर को आपने सपोज जो कस्टमर आपने एक्वायर किया है उसके पीछे आपने मार्केटिंग कॉस्ट किए, आपने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की, आपने जो भी मार्केटिंग कॉस्ट किए, और हो सकता है और भी एक्सपेंसेस आपने उसके ऊपर किया हो, कोई सेमिनार आपने किया हो, कोई फ्री डेमो आपने किया, ये सारी चीजें किया है आपने, फ्री रजिस्ट्रेशन दिया, तो ये सारे आपके कॉस्ट है, राइट। आप फ्री में दे रहे हो लेकिन आपके कॉस्ट है वो। तो ये इस तरह के जो आपको आपको क्या करना पड़ेगा, आप तो कंपनी चला रहे हो ना, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये सारे मेरे कॉस्ट है, उसके बाद मैं प्रॉफिट कर रही हूँ। यू नीड टू नो, आपकी कंपनी है तो आपको समझ में आना चाहिए कि मैं जो रेवेन्यू जनरेट कर रही हूँ इससे, तो मेरे रेवेन्यू में ये मेरे कॉस्ट हैं। तो आप जब ये जो आप इसमें जब आपने ट्रैक करोगे, देन यू विल नो कि आप कहां पर हो। आप रियल आपने अपनी आरओआई निकाली बिजनेस की, आरओआई निकालने के बाद आप प्रॉफिट में जा रहे हो, करेक्ट। तो तो आपका जैसे कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट होता है, कस्टमर टाइम वैल्यू, लाइफ टाइम वैल्यू, अगर आप कस्टमर को लाइफ टाइम के लिए वैल्यू दे रहे हो उसका एक कॉस्ट होता है। आप जब अपने बिजनेस को चलाते हो तो आप सीआरएम टूल्स यूज करते हो जिसमें आप ट्रैक करते हो अपना सेल्स रिकॉर्ड, ट्रैक कर सकते हो। ये सारे आपके टूल्स हैं जिसमें आप डिफरेंट इंसाइट्स हैं, मीडिया इंसाइट्स है, गूगल इंसाइट्स है, ये सारे इंसाइट्स आप ले करके समझ पाते हो कि आपका कॉस्ट क्या है कंपनी का, और आपको ये सारे टूल्स लगते हैं। अगर आपको कभी इन टूल्स के ऊपर ट्रेनिंग चाहिए तो
तो आप गुरप्रीत सर को बोलिएगा कि आपको एक टूल्स एंड टेक्निक्स के ऊपर एक ट्रेनिंग अरेंज करें, तो आप समझोगे कि हमने बिजनेस खोल लिया, हमने सेल्स भी कर लिया, लेकिन अब बिजनेस मेरा प्रॉफिटेबल कैसे चलेगा, कैसे मैं टूल्स यूज करूं, कैसे मैं टेक्निक्स यूज करके अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए चलाऊं। तो वो उसको चलाने के लिए जो टूल्स टेक्निक्स लगेंगे उसके ऊपर आप एक ट्रेनिंग ले सकते हो। ये बहुत बड़ी ट्रेनिंग होती है वर्कशॉप की तरह, जो आप कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट, सो ये टेक अवेज है जो आपने लिए आज। आज आपने समझा आपका ऑडियंस कौन है, राइट। आप कैसे अपनी ब्रांड आइडेंटिटी बना सकते हो, कैसे सेल्स एंड मार्केट को मतलब मास्टर हो सकते हो, फोकस कस्टमर्स, ग्रोथ हैक, ये सारी चीजें आज आपने समझी। नेक्स्ट, नेक्स्ट कर दो। अब मैं एक आपको एक्टिविटी देती हूँ, ठीक है। आप जितने हैं यहाँ पर, आप आपके पास 5 मिनट्स हैं, आप अपना नाम लिखो। ये एक्टिविटी है तो इसमें सबको पार्टिसिपेट करना है। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करोगे तो आपको बहुत बहुत क्लैरिटी आएगी कि आप अपने बिजनेस को कैसे रन करोगे, आप अपने बिजनेस को कैसे प्रेजेंट करोगे, आप अपने बिजनेस में आपको बहुत सारी क्लैरिटी आ जाएगी, करेक्ट। तो ये एक्टिविटी में क्या करना है, आपको आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है। आप अपनी कंपनी का नाम लिख सकते हो। अगर आपने अभी अपनी कंपनी नहीं स्टार्ट की है, आप अपनी कंपनी का क्या नाम रखना चाहते हो वो लिखो। उसकी बिजनेस कैटेगरी बताओ, आप क्या चीज का बिजनेस, कौन से प्रोडक्ट का या क्या चीज का आप बिजनेस करना चाहते हो। जैसे मेरी कैटेगरी है एजुकेशनल रोबोटिक्स एंड कोडिंग, वैसे ही आप अपनी लिख सकते हो। लाइक कोई रियल एस्टेट में जाना चाहता है, कोई हार्डवेयर में जाना चाहता है। अब जैसे मैम है, बीना मैम है, आर्ट एंड क्राफ्ट में उनका है। तो आप इस तरह से कोई भी कैटेगरी आप जिसमें इंटरेस्टेड हो, वैसी कैटेगरी आप डाल सकते हो बिजनेस की, करेक्ट। एंड उसके बाद आप अपने जो बिजनेस करना चाहते हो उसका यूएसपी, मैंने आपको समझाया था यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, आप उसकी यूएसपी, आपका बिजनेस दूसरे कॉम्पिटिटर से कैसे डिफरेंट है, आपका प्रोडक्ट या आपका बिजनेस, आपका ब्रांड, वो आप डालोगे उसमें। एंड देन आप एक बिजनेस प्रेजेंटेशन बनाओगे 30 सेकेंड का, अपने बारे में, मतलब आप अपनी कंपनी के बारे में बताओगे कि मेरी कंपनी है, ये कंपनी है, ये उसका यूएसपी है। और इस आप एक कुछ यूज करोगे वर्ड्स जो आपकी कंपनी को आप लॉन्च करोगे, करेक्ट। आपकी कंपनी को आप यहां लॉन्च करोगे उससे। समझ में आया? अगर किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। हैंड रेस करेंगे कौन कौन इंटरेस्टेड है और कर रहे हैं ये एक्टिविटी। पायल जी इंटरेस्टेड है, और ठीक है। आप जो भी इंटरेस्टेड है आप स्टार्ट कर दें ये एक्टिविटी करने में। आपके पास 5 मिनट्स है। नाउ इट्स 4:11, सो हमारे पास 5 मिनट्स हैं।
किसी को अगर कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे पूछ सकते हैं. Yes, Payal, your work is done. Working on it, sir. Working on it. It's okay. Yes, Yeah, ma'am. you have 2 minutes. Okay, ma'am, I'm done here. Hello. My work is done here, ma'am. हाँ, चलो पायल आप प्रेजेंट करोगे ना 30 सेकंड Okay, का ma'am. बिजनेस फ्लैश और बाकी आपको Yeah. जो स्टार्ट करते हैं. Yeah, should I start now? Yeah. Yeah, I will go ahead then. My name is Payal Nahar. I am from a region in Chhattisgarh, that is Bastar. And Bastar जो है वो अपनी बहुत सारी संस्कृति के साथ अपने फॉरेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है. But due to very maybe official and unofficial reasons, the environment is really degrading here too. I'm not just talking about Bastar, but other areas in India too, this is happening. So my goal, my business category would be sustainability. The name of the company would be EcoWork. The thing is, EcoWork is not only for environment, but it has 3 sections. The first letter E represents environment. Co means the humans working with environment and within the environment with sustainability to safeguard it and to use it. And that is the last part work. कि जो ह्यूमंस हैं वो एनवायरनमेंट को यूज करके नॉट हार्मिंग देम बट उसको यूज करके कैसे अपने वर्क को जनरेट कर सकते हैं. सो आई हैव द आइडिया ऑफ टू like products. First is banana fiber fabric and the second is bamboo cutlery. This is important because the banana fiber fabric, like the fabric made up from the banana fiber, is gaining attention but not a lot. Sorry for the interruption. It's okay. सो जो बनाना फैब्रिक है उसमें बहुत कम ऑडियंस है. ऑल्दो द एनवायरमेंटलिस्ट नो अबाउट इट बट उसकी ऑडियंस ज़्यादा नहीं है. ऑल्दो इसकी जो फैब्रिक है वो बहुत सॉफ्ट होता है, वो बायोडिग्रेडेबल होता है और वो हर सीजन में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है. और उसमें जो डाइज भी यूज़ किया जाता है वो नेचुरल डाइज होते हैं जो हार्मफुल नहीं होते. अगर मान लीजिए आप 1 साल 2 साल या 2 महीने भी पहन के उसको कहीं फेंक रहे हैं या डिस्पोज कर रहे हैं तो वो एनवायरनमेंट को किसी तरह से हार्म नहीं करता. अनलाइक द machine made fibers like nylon, rayon, these are made up of plastics or components of plastic which is harming environment, and this is the major cause of today's time. And the lastly is bamboo cutlery. So this is related to travel. If we are going to travel, we use cutlery, mostly metal ones or the plastic ones. ऑल्दो कि अभी बैम्बू कटलेरी या वुड कटलेरी इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, बट जो वुड है उसके कारण वुड जो कट हो रहे हैं उसका जो रेंज है वो बढ़ते जा रहा है, उसमें कमी नहीं आ रही है. हमारा मेन फोकस है कि डिफॉरेस्टेशन कैसे कम हो. तो ये जो बैम्बू रीयूजेबल कटलेरी है वो आप एक ट्रैवल किट होगी जिसमें आपको फोक मिलेगा, एक बटर नाइफ, एक स्पून और एक चॉपस्टिक का सेट.
जिसको आप कहीं भी रैप करके ले जा सकते हो। इट इज़ वेरी लाइक रीयूजेबल। जो क्लॉथ भी मेड अप होगा या तो वो कॉटन का होगा या तो बैम्बू फैब्रिक का बना होगा, ताकि अगर उसका कोई भी कंपोनेंट डिस्पोज हो एनवायरनमेंट में तो वो हार्म ना करे। वो विदाउट extremely going against the environment, it decomposes it, it allows itself to meet itself in the environment. Okay. Wow. And my USP would be every category, like from children to adults. I want to target every audience because environment is not only the concern of adults. Children are very getting what can say harmful effects of it, like we have seen the recent case of Nutrilla, no, the baby powder. Researchers have found microplastics in it, so it's a major concern for babies, adults and old age people too. And that's all. Thank you. वेरी गुड। बहुत ही अच्छा आपका है। आप एक मतलब इको वर्क के लिए आप जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स में आप डील करना चाहते हो, बहुत ही अच्छा आपका कॉन्सेप्ट है। कभी हम मिलेंगे तो वी विल आल्सो वुड लाइक टू पार्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट। मैं आई Ma'am, थिंक I just thought about it. I'm not thinking of launching it actually. नहीं But really it will be very appreciate beneficial for your the idea. environment if it got launched. बहुत ही आपका मतलब आपका बिजनेस आइडिया भी काफी अच्छा है। एंड आप जो फैब्रिक जिस तरह का चाह रहे हैं बैम्बू का एंड बनाना फैब्रिक आप चाह रहे हैं, मैं बैम्बू में जानती थी बट बनाना आई वाज नॉट नोन अबाउट इट कि इसका No, भी ma'am, फैब्रिक actually होता है। बनाना का जो पेड़ होता है वो ईयरली पेड़ होता है। एक Okay. साल में वो एक ही बार फ्रूट्स देता है। तो हाँ। उसका जो स्टेम बचता है, उस स्टेम को निकाल के उसमें से जो फाइबर जनरेट होता है, उससे फैब्रिक बनाया जाता है। ओके ओके। It's a great idea and hope government will be support your idea. या And it's a really unique idea. And हम लोग जैसे even I know that the bamboo वाला and बनाना का मैंने और भी मतलब जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट टोकरी वगैरह जरूर अवेयर है, but Yeah. fabric is a good and think about it and you just suffer about this ideas. Yeah. चलो नेक्स्ट कोई और। थैंक यू सो मच पायल, राइट? Yeah, thank you, ma'am. बहुत ही ग्रेट Anyone आइडिया। try hope कोई और भी पायल से इंस्पायर होके या उसके उनके पास में भी कोई आइडिया यदि है तो वे कैन से वो भी बता सकते हैं। और भी कोई इंटरेस्टेड है तो आप अपने आइडिया शेयर कर सकते हैं। लाइक जैसे पायल ने बताया, आपके आपके मन में भी ऐसा कोई आइडिया होगा जो बिजनेस, भले ही आप आज बिजनेस में नहीं होंगे लेकिन कल आप उसको एज अ बिजनेस प्रोस्पेक्ट आप एक स्टार्टअप बना सकते हैं अपना। सो कोई इंटरेस्टेड हो तो प्लीज आप अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। वी हैव आई थिंक गुरप्रीत सर, वी हैव टाइम। Yes, ma'am. I just wanted to say that if anyone wanted to speak or give their own viewpoint, can share their 5 minutes activities if you have done it. Or shall we proceed further then? गुरप्रीत सर, अगर लोग नहीं दे पा रहे हैं, अगर ऐसा कुछ हो तो वी कैन कनेक्ट अगेन एंड या फिर आपको वो आइडिया शेयर कर दें, यू कैन शेयर विद अस। Sure, ma'am. I'll do it definitely. If someone who wants, because that is the recorded one, right? This video. So if anybody who will watch this video from our university and if they wanted to share their own 5 minutes activities to the English department, they can definitely do it. Okay, sure. Yeah. So shall I then start with this? Yeah. So Thank you. yeah. Thank you so much, madam, for your time that you have given to us. And the presentation is also very nice. You had talked about a lot of aspects of marketing strategies. For instance, you talk about customer understanding, which is very crucial for sustaining of any business.
right? And also you talk about it when we talk about customer understanding, we also need to do a lot of market research. We also need to go for the target audience. We also need to work on identify our ideal customers, or the age of the customer, the location where the persons live, and the preferences as well. And then we also need to understand like what are the problems that the normal customers face, and then we provide the solution to them. That's how we understand the customer, so that we can actually give them a kind of a product so that they can buy from us. And also, one thing that I really like about your presentation, that we even me also got to know a lot of understanding of the marketing strategies. Like in the 5 minutes activities, you have mentioned a lot of good things from there. So it's such a great opportunity from for us as well as for the students to learn and understand a lot from your both of you. You're such a great person, I know that, and you both are the founders of a company, right? So thank you so much for coming and giving your precious time to our university for that. Thank you so much Gurpreet जी, thank you so much participants, thank you पायल जी, पायल ने बहुत ही अच्छा मतलब पार्टिसिपेशन दिया। Yeah, Payal is one of a good student from our English department, by the way. Actually, interaction will be helping trainer to trainee value the interactions. Yes, To yes, provide yes. the value, we need interaction, right? Yeah, we need interaction, and without interaction, and the communication skill is very important, Correct. right? So we need to know how to talk to people and engage in certain things so that we can understand, right, each other. Thank you so much. Yeah. Thank you so Thank you much. so much, madam, both of you, again. And thank you so much, Rekha, ma'am. She's also there from our English department, who helped me to conduct this webinar, and also Dr. Vishnu Pratap Singh, who also helped me in this webinar and stay with me and understand everything and help me conducting this webinar. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. So I'm going to dismiss this then. Okay. Thank you so much, madam.